बेसिकली मुझे कुछ आइडिया नहीं था सेवन मेंटोर के बारे में, टू बी ऑनेस्ट. सो मैंने गूगल पे ही सर्च किया था कि बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग क्लासेस इन पुणे, एंड दैट्स व्हेन सेवन मेंटोर पॉप्ड एट द वेरी फर्स्ट पोजीशन. सो पहले तो ऐसा था कि ऑफ कोर्स हमको कुछ आइडिया नहीं था इंटीरियर के बारे में. सो our teachers helped us a lot from building the very first skill which is necessary for interior designing. So that was from coloring, painting, and like building the hand sketches. So that is the very primary portion which we started from. So from first year, from the very first day, it was always a theoretical as well as practical session which has helped us a lot building like lots of skills. I have completed my very first project very successfully. And good client response I have got. And later on फिर जर्नी चालू हो गई एक क्लाइंट के बाद. आफ्टर पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया और माउथ पब्लिसिटी, देन आई हैव बीन गेटिंग क्लाइंट्स. इंटीरियर डिजाइनिंग इज अ रियली वेरी ब्यूटिफुल फील्ड. It is a very artistic as well as a technical field where you have to use all your skills, gather your skills, and at the end, surely when you see your paperwork, your 3D work into reality, that feeling, that that motivation is way different. मतलब एक कोई 3D प्लान किया है, and when you keep your 3D in one hand and on the other side you are seeing your real result, that feeling is superb. It is very, very different. Hi guys, welcome back to Seven Mentor. I'm Saili with the new student here, Samidha. Samidha is an interior designing student, and now let's meet Samidha. So hi Samidha, how are you? I'm good, Saili. How are you? Okay, I'm good Samidha, thank you. And could you please introduce yourself to our audience? Sure. Myself Samidha Shriram. I am situated from Pune itself. I have completed my schooling from Rosary High School and then enrolled in SP College for my further 11th and 12th education. Later on, I got enrolled for myself for BCom. So I am a commerce student, completed my BCom from SP College. Okay Samidha, so as you just mentioned that you are a commerce student, तो आपने मतलब इंटीरियर क्यों चूज किया? मतलब हाउ यू एंड अप चूजिंग इंटीरियर apart from like being a commerce student? You should enrolled in CA or something, don't you think? Actually, but मैं शुरुआत से किताबी कीड़ा नहीं रही हूँ. I am a more artistic person, so like to sharpen my artistic skills, I thought of enrolling myself into interior designing. Okay, so that's yes. great. तो समिधा मतलब आपको कैसे पता चला that you are interested in interior only? Because artistry में बहुत सारे field है, तो मतलब why interior only? Correct. Actually, there are two reasons. Firstly, मुझे technical but artistic ऐसी field बहुत पसंद थी. Okay. So, if thinking about architecture, it is also a very difficult field to go in. So, I thought of a field which will help me to like get myself into a very good future. That was the first reason. Second reason ऐसा था कि my family is also into this field. They are into civil. So to give them a support or getting myself a support, I thought of being into interior. Okay, that's nice. So क्या आप बता सकते हो थोड़ा बहुत मतलब कि आपने इंटीरियर का ये जो कोर्स जो करने का आपने सोचा, तो आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की, कि आपने कहाँ पे सर्च किया, ताकि हमारे जो स्टूडेंट हैं जिनको इनरोल करना है इंटीरियर के लिए उनको थोड़ा आइडिया आ जाए, जिनको पता नहीं है इंटीरियर के बारे में. तो एज यू मेंशन कि आपको भी पहले नहीं पता था, तो आपने ये कहाँ से सर्च किया, आपको कैसे पता चला? तो बेसिकली मैंने इसके लिए बहुत R&D किया है. सो दैट R&D वाज कंप्लीटली ऑन गूगल. आई वेंट थ्रू ऑल द एस्पेक्ट्स. फर्स्ट लर्नड माई सेल्फ दैट व्हाट interior designing is actually about. So first I got everything prepared for myself. Then मैंने गूगल पे बहुत कुछ सर्च किया कि आसपास कौन से अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनिंग के कोर्सेज अवेलेबल हो रहा है. बिकॉज आई वॉज स्टिल डूइंग माई BCom. आई वॉज इन टू फर्स्ट ईयर ऑफ BCom. सो ऑफकोर्स मैं कोई और डिग्री कोर्स नहीं ले पा रही थी. आई वॉज नॉट एबल टू गो फॉर पुणे यूनिवर्सिटी. सो आई वॉज लुकिंग फॉर सम क्लासेस विच आर सर्टिफाइड कोर्स which will help me getting all the aspects like properly, practically and theoretically. That's when I got about Seven Mentor from Google itself. So yes, that's then I visited Seven Mentor with my family, and then तो आपने मतलब कैसे सोचा कि आपको सेवन मेंटोर में इनरोल करना है? लाइक बेसिकली मुझे कुछ आइडिया नहीं था सेवन मेंटोर के बारे में, टू बी ऑनेस्ट. सो मैंने गूगल पे ही सर्च किया था कि best interior designing classes in Pune, and that's when Seven Mentor popped at the very first position. Okay. So yes,
तब मैंने That's how you हाँ got to know about San Minta. That's great. Okay, so could you please tell us about your skill sets? मतलब how did you end up in San Minta और आपका यहाँ का जो कोर्स का ओवरऑल एक्सपीरियंस है तो वो कैसा रहा है आपका? श्योर तो अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ सो फ्रॉम फर्स्ट ईयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे it was always a theoretical as well as practical session which has helped us a lot building like lots of skills. Okay. So पहले तो ऐसा था कि of course हमको कुछ आइडिया नहीं था इंटीरियर के बारे में so our teachers helped us a lot from building the very first skill which is necessary for interior designing. Okay. So that was from coloring, painting and like building the hand sketches. Okay. So that is the very primary portion which we started from. And like what is the duration of your course? So I have enrolled myself for 3 years. So Okay. my duration is for 3 years. Now I'm into second year. And who's your teacher? We are getting trained by Shraddha ma'am. Okay, and how is she? Could you tell us? Okay, something so about she her? is absolutely very good. She has helped us to like learn all the process very properly. Be it like, of course, we have made mistakes a lot, and she has never thought like got a single thought कि मैं इनको कितने बार समझाऊँ. Right. She has helped us throughout the process a lot. 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो, even on calls, ma'am is always available for us. जो हमारे छोटे से बड़े डाउट हो, she's always helped us to solve them. Okay, that's nice to hear actually. और क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि यहाँ पे सैन मेंटोर में आपका जो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस के अलावा जो एनवायरनमेंट है यहाँ का फॉर स्टूडेंट्स वो कैसा लगा आपको उसके बारे में कुछ बोलना It is a very friendly environment. Our teachers have, we have never, हमको ऐसा कभी लगा ही नहीं है कि टीचर है. हमारा always एक friendship types relation रहा है. But yeah, everything is very good. हमको सब सर्विसेज अच्छे से मिल रही है. Everything is good. ओके, दैट्स नाइस टू हियर. और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि मतलब जैसे आपने अभी यहाँ पे कहा कि इससे पहले आपको इंटीरियर के बारे में कुछ नहीं पता था, तो यहाँ पे आने के बाद आपके स्किल सेट्स जो है वो कैसे इवॉल्व हुए, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हो? श्योर तो हमारे स्किल सेट जैसे आपने बोला वी वर 0 बट राइट नाउ वी आर वेरी मच स्किल्ड. एटलीस्ट लाइक बेसिक स्किलिंग से एक मीडियम लेवल के स्किलिंग तक हम लोगों ने खुद को या टीचर्स ने हमको बहुत हेल्प करके प्रोजेक्ट्स या फिर पोर्टफोलियोज डेवलपमेंट थ्रू हमारी बहुत स्किल बढ़ गई है. सो आफ्टर दैट इवन हमारे क्लास में से बहुत लोगों ने वी हैव ट्राइड आवरसेल्फ टू एक्सपोज टू द वर्ल्ड एंड गेट ट्राइंग लाइक प्रोजेक्ट्स मिलाना थोड़ा ट्राई किया है. So yes, I have started my own firm where I have started to get my projects. That's nice. So yes. So first of all, congratulations for Thank your you. own firm. जैसे आपने अभी मेंशन किया कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स लेना स्टार्ट कर दिया, तो could you please enlighten us on that part? Sure. So basically, I was the very much unaware कि I will be getting projects so soon because of course in a very learning stage it is very difficult to get Yes. projects. Many of us try to get for job like we enroll for job कि 3 years का course complete हो जाए तो job को जाते हैं so that skills develop हो जाए. But इधर हम लोगों का skill इतना अच्छा develop हुआ है कि I had a bit confident in myself like let's give it a try. I can do like looking back at my skills कि okay थोड़ा बहुत prepared हुआ I can try getting my clients. Okay. So my very first client was actually my very like best friend. So she gave me her project. Okay. That's when I like थोड़ा courage gather थोड़ा किया. confidence हाँ Okay. courage gather किया कि okay let's give it a try. That's when my teachers supported me a lot. That's because कुछ भी आइडिया नहीं था बट सिर्फ टेक्निकल नॉलेज पूरा था कि टेक्निकल So right from scratch she is there with you. यस एवरीथिंग. तो पूरा हमको ये तो था मेरे को थियोरी तो था कि हाँ ये सब ऐसे करना है. हाँ प्रैक्टिकल इट वाज माय वेरी फर्स्ट टाइम. सो आई गॉट इनटू इट विथ ऑल माय कॉन्फिडेंस माय करेज a bit of tensed but I tried completing it and yes I have completed my very first project very successfully. That's and nice. good client response I have got. And Okay. later on फिर जर्नी चालू हो गई एक क्लाइंट के बाद आफ्टर पुटिंग इट ऑन सोशल मीडिया और माउथ Okay. पब्लिसिटी देन आई हैव बीन गेटिंग क्लाइंट्स slowly but yes. That's nice.
तो आप मतलब थोड़ा कुछ हमें बता सकते हो अपने प्रोजेक्ट, जैसे आपने अभी बताया कि अपने क्लाइंट्स के बारे में, तो आप जब वहाँ पे विजिट के लिए जाते हो, आप अपने साइट्स पे जब जाते हो, तो वहाँ पे मतलब क्या सिनारियो रहता है कि आप साइट विजिट में जाते हो तो आपके जो इनिशियल पॉइंट्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कि आप वहाँ पे जाके क्या देखते हो, कि जो Okay. हमारे स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहोगे कि अगर आप एक क्लाइंट विजिट के लिए जा रहे हो तो हाउ डू यू प्रिपेयर योर सेल्फ, और वहाँ Right. पे जाके आप क्या करते हो श्योर एग्जैक्टली? तो पहले तो फर्स्टली इट इज़ अ क्लाइंट मीटिंग, तो खुद को पहले प्रिपेयर करना रहता है कि वो उन लोगों के डिजाइनिंग, क्योंकि हर एक क्लाइंट के दिमाग में उनकी उनके ख्याल रहते हैं कि Exact. मेरे को Thought मेरा process अलग थॉट रहता प्रोसेस है रहता है कि मुझे सबका। मेरा घर ऐसा डिजाइन करना है, Right. बट दे आर हैविंग आइडियाज एंड ऑन द अदर हैंड वी आर हैविंग टेक्निकल नॉलेज, Right. सो वी हैव टू हेल्प देम अंडरस्टैंड कि व्हाट टेक्निकल नॉलेज वी आर इम्पार्टिंग देम टू बिल्ड देयर हाउस. Okay. So that is the very first process from which you have to build yourself. फिर बाद में थोड़े रेफरेंस इमेजेस लेके जाते हैं, फिर वो होने के बाद 3D 2D पे आते हैं. फर्स्टली मेजरमेंट लेआउट पे वर्क करते हैं, जो 2D पास होता है पहले Okay. क्लाइंट के पास. क्लाइंट को 2D में फर्नीचर लेआउट पसंद आया तो 2D पास होने के बाद वी वर्क ऑन 3D. 3D, yes. सो 3D भी पूरा डिजाइनिंग करने के बाद अगर उनको वो 3D पूरा पसंद आया, देन इफ अप्रूवल मिल गया, then we start with designing, then material arrangement, labors को explain करना, technical drawing for the labors, 3D drawing for Okay. the client. Client. So that makes a key process for the entire project. ओके समिता, जैसे आप अभी बोल रहे हो कि अपने क्लाइंट्स को मतलब आप अपना एक पोर्टफोलियो दिखाते हो, Correct. तो जस्ट वो प्रोसेस थोड़ा मुझे समझा दीजिए कि आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करते हो, बिकॉज Sure. कैसा होता है एक पोर्टफोलियो के लिए आपका थोड़ा वर्क आपको उसमें डालना पड़ेगा. Correct, ओके, दैट्स correct. माय बेसिक नॉलेज. तो आपका वो वहाँ पे डालने के लिए हाउ डिड यू स्टार्ट बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, और इसमें फिर आपके मेंटर्स ने आपको क्या हेल्प किया, और वो Okay. प्रोसेस थोड़ा हमें समझा Sure. दीजिए. तो बेसिकली हमको फर्स्ट ईयर से along with sketching on papers, we were taught to do it on laptop as well, which is Okay. softwares. So एंड कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो हाँ, आप तो इसके अभी लिए? जैसे 2D के लिए वी हैव ऑटोकैड, Okay. फॉर 3D वी वर्क ऑन स्केचअप, रेंडरिंग के लिए वीरे, एंडस्केप, लूमियन है. तो ऐसे वेरियस सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन हम करते हैं. तो फर्स्ट ईयर में हमको बेसिक से चालू किया था, जहाँ हमने ऑटोकैड पे लाइन मारना से सीखा Okay, था. okay. सो फ्रॉम दैट वी स्टार्टेड बिल्डिंग, लाइक एक स्क्वायर बनाना, स्क्वायर से लेके तो पूरा प्लान, from basic की बेसिक मतलब line से start किया एवरीथिंग आपने. पूरा, like literally how to drag, because अब जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं उनका एक्सेस ऑन माउस इज ऑल्सो डिफरेंट, सो Okay. जूमिंग एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट, शिफ्ट मतलब शिफ्ट करना वगैरह सब डिफरेंट रहता है. तो आवर टीचर्स मेड श्योर कि वो सब हम अच्छे से सीखे, सीख बिकॉज जाए, दैट इज द वेरी बेसिक पार्ट. That's your एंड foundation फाउंडेशन, basically, yeah. वंस यू आर डन विद द फाउंडेशन और बेसिक, दैट्स व्हेन वी मूव फॉरवर्ड. Then आप कुछ भी कर सकते हैं. तो ऑटोकैड पे हमने पूरा पहले छोटे से सब सीखा, एंड देन इज व्हेन वी लर्नड अबाउट प्लान. ओके. प्लान कैसे बनाना है. नाउ देयर आर लाइक सिम्बॉल्स फॉर पर्टिकुलर थिंग, लाइक Okay. विंडो के लिए एक पर्टिकुलर सिम्बॉल रहता है, डोर के लिए एक पर्टिकुलर सिम्बॉल रहता है. आवर टीचर्स मेड श्योर दैट वी आर ऑल्सो like known to this symbols, because Okay. this is not only about interior, it is used in architecture field also. Okay. So they made sure that we are not only restricted to interior but also the civil and architectural plans, so that Yeah. we will be completed in all the aspects when we fall outside the, like when we step outside the class. Okay. So उन्होंने वो सब हमें पूरा सिखाया. We learnt about building the basic plan. So पूरा मतलब जैसे कितना स्क्वायर फीट को कैसे लिखे, अभी हर एक चीज को डिमोट करने के लिए एक सिंबल रहता है. Right. तो आप उसको कैसे टाइप करोगे, कैसे लिखोगे, बिकॉज जब आप क्लाइंट के सामने खुद को प्रेजेंट कर रहे हो तो उनको नहीं लगना चाहिए कि कि आपको कुछ आता नहीं है, या फिर इसने कुछ सीखा नहीं है. राइट. हाँ. तो क्योंकि एक मिथ रहता है कि ये तो इंटीरियर है, इसको क्या आर्किटेक्चरल प्लान रीड करना आएगा. एग्जैक्टली. सो वो वैसा नहीं होना चाहिए. जब क्लाइंट ऑफ कोर्स उनका फ्लोर प्लान हमको दिखाते हैं तो वी शुड बी एबल टू रीड दैट, एंड दैट्स व्हाट आवर टीचर्स मेड श्योर दैट वी आर एबल टू रीड दिस प्लान वेरी केयरफुली, एवरी माइन्यूट डिटेल, वेयर इज द कॉलम, वेयर इज द बीम, एंड बिकॉज कॉलम तो तोड़ नहीं सकते, तो वो हमको रीड करना आना चाहिए कि रिनोवेशन के टाइम वो तोड़ सकते हैं या नहीं. सो वो पहले हमने सीखा, एंड देन वी मूव टूवर्ड्स 3D. ओके.
सो 3D में भी बेसिक सी, अभी लैपटॉप पे वर्ड पे एक्सेल पे सबने बचपन में काम किया हुआ है, हाँ, या everybody फिर does ड्राइंग that. जो था ड्रॉ किया Yes, है yes, कंप्यूटर yes. सेशंस में, आईटी Yes, क्लासेस में, yes. बट नेवर वी हैव थॉट और डन कि एक 2D सरफेस को 3D में कैसे रेज convert करें. करना है, right. So that was a very interesting part for Okay. us, and it was a very new experience. We were very much excited to learn that. Of Okay. course, we were excited to learn 3D more than 2D. Okay. सो आर टीचर्स प्रॉपरली उन्होंने मतलब एक सर्कल कैसा बिल्ड कर सकते, एक स्क्वायर कैसा बिल्ड कर सकते, ये तो बहुत बेसिक हुआ. इस पर से हमको कैसे डाउनलोड करने का मटेरियल्स, या फिर कौन से मटेरियल एवरीथिंग, हाउ टू इल्यूमिनेट वन थिंग, लाइक वी यूज लाइट्स फॉर फॉल सीलिंग. So what light is to be used where, that was a very big teaching, because we can't use surface light on false ceiling, we have to use Right. panel lights. So that difference our teacher made sure कि we understand अच्छे से कि समझ panel आए, light yes. कहाँ use हो सकती है, surface light कहाँ use हो सकती है, और LED कहाँ use हो सकती है. So ये उन्होंने पूरा properly हमें process समझाया, सिखाया, और 3D में फिर हमने उसको apply किया That's कि nice. कैसा दिखेगा वो. तो हमने बहुत बेसिक से शुरुआत की थी, जहां हमने एक रूम का डिजाइनिंग चालू किया था, एंड दैट वाज आल्सो नॉट डिजाइनिंग बट फर्नीचर का एप्लीकेशन कैसा हो, कि ये स्पेस में कैसा फर्नीचर कैसा दिखेगा. सो वैसा हमने स्टार्ट एक किया. चीज यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूंगी गाइस पे कि उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, राइट फ्रॉम लर्निंग कि एक लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं. नाउ शी इज वर्किंग विद मल्टीपल क्लाइंट्स, सो उनके कॉन्फिडेंस में इतना बूस्ट आया है. तो एक चीज़ है उनके बारे में जो ये आप नोट कर सकते हो कि यहाँ पे उनके टीचर ने उनको जो सपोर्ट किया है, फ्रॉम लर्निंग टू ड्रॉ अ लाइन टू हैंडलिंग द मल्टीपल क्लाइंट्स. तो एक्चुअली आप बहुत Yes. अच्छा कर रहे हो. तो मुझे एक बात बताइए कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, ठीक है, आपने ब्रोशर वगैरह कर लिया, कि आप अपना पोर्टफोलियो वगैरह बिल्ड करना भी सीख गए हो. तो अभी मुझे ये बताइए कि आप थोड़ा मटेरियल्स के बारे में बात करते हैं कि इंटीरियर हाँ. डिजाइनिंग में, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट जस्ट कि सोफा का प्लेसमेंट कैसा है या वॉल पे कौन सा Correct. कलर लगाना है, बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट दैट. ओके, Right, तो right. आप उस पे थोड़ा हमें इनलाइटन कीजिए Sure. कि ये क्या प्रोसेस है और मटेरियल्स आप कैसे चूज करते हो, ये थोड़ा आप करेक्ट. समझाइए हमें. सो बेसिकली मटेरियल एप्लीकेशन और कौन सा मटेरियल किधर यूज करें, इट इज़ द वेरी बिग थिंग इन इंटीरियर डिजाइनिंग. जैसे आपने बोला कि लोगों को लगता है कि सिर्फ प्लेसमेंट Yes. का रहे और कैसा रहे. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग, बट दैट इज नॉट इंटीरियर डिजाइनिंग. इट इज ऑल ऑफ कोर्स इंटीरियर डेकोरेशन का पार्ट है, बट इंटीरियर डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट व्हाट मटेरियल इज टू बी अप्लाइड वेयर. बिकॉज अगर आप किचन में एक नॉर्मल प्लाई लगा दो तो वो वाटर के एग्जिस्टेंस के वजह से खराब हो सकता है. सो दैट इज वेयर मटेरियल नॉलेज इज मोर नीडेड. सो बेसिकली हमको क्लास में एक मटेरियल्स का अलग से एक चैप्टर था, where we learned about all the materials available in the market, be it from ply to laminate, from acrylic to all the finishing materials. So everything. So पूरा मतलब जैसे ply ये finishing material नहीं है, ये structural material हो गया. तो structural material में कितने types है, कितने mm के आते हैं, कौन सा किधर यूज करे. जैसे अभी 12 हो गया तो वो कहाँ यूज करे, 18 हो गया तो वो कहाँ यूज करे. तो ये सब बताया था. अभी ये सिर्फ हो गए, उसमें भी टाइप आते हैं. मरीन प्लाई आता है, कोई ग्रीन प्लाई आता है. तो जैसे मरीन प्लाई कहाँ यूज करे, तो मरीन प्लाई किचन में यूज करे, या फिर जहाँ पे वाटर का एग्जिस्टेंस है या फिर वाटर का एक्सपोजर है, तो वहाँ पे प्लाई कैसे यूज करे. अभी जैसे हीट रेजिस्टेंट प्लाई रहते हैं तो वो आप टीवी यूनिट में यूज करें जहाँ पे हीट है थोड़ा, तो वैसा वो बताया था. फिर बाद में फिनिशिंग मटेरियल्स. सो लाइक स्ट्रक्चर मटेरियल तो हमको आंखों से दिखता नहीं है, व्हाट वी सी इज फिनिशिंग मटेरियल्स. सो हाउ लाइक ऑन व्हाट थिंग विच फिनिशिंग मटेरियल विल लुक गुड. नाउ दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एंड फिनिशिंग मटेरियल. इफ लाइट इज फॉलिंग ऑन वन फिनिशिंग मटेरियल देन वी हैव टू थिंक कि इधर मैट फिनिश अच्छा लगेगा या पॉलिश फिनिश अच्छा लगेगा. While you're thinking about the finishing material, you also have to think about the lighting. Light also, exactly. Okay. So we have to like there is a one and one like hand in hand process है. The light का रिफ्लेक्शन अगर गिर रहा है, गलत हुआ तो everyone will mess up. And उसके साथ कलर कॉम्बिनेशन, मटेरियल में भी डिफरेंट एम्पल टाइप्स ऑफ कलर रहते हैं. What is your favorite combination? So basically I am more into minimalistic zone. I like doing
soft beige touch, like Okay. giving it to all the furniture. But of course, it doesn't depend on us. It depends on the Exactly, client. yes. So if the client is having a vibrant choice, then we are ready to suggest them such combinations. And Okay. also, we actually had one chapter which was all about color combinations and types of designs. So there are Okay. ample of designs like boho हो गया, minimalistic हो गया, chic हो गया. जैसे अभी boho बहुत चल बहुत रहा है, trending में है, बहुत right? ट्रेंडिंग में है. Yes. अभी जैसे शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट जो है, it is a complete On boho boho design. theme, yes. So तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि यू हैव टू टेल द क्लाइंट्स आल्सो कि किसके साथ क्या क्या आ जाएगा. बट समटाइम्स यू नो एक चीज हो जाती है कि कुछ क्लाइंट्स अड़ जाते अड़ जाते हैं, right, right. तो आप वो चीज को कैसे हैंडल Right. करते So हो? that is when the convincing power comes into the game. Okay. So you have to be such कि whatever you are saying, the client should think कि हाँ, ये अच्छा she is लगेगा. having that type of knowledge where she yes. is helping us कि जो मैं बता रही हूँ that is going to work for your house. Of Okay. course, here is when 3D comes into the game. So we can help them understand their aspects as well in 3D. कि आपका जो है, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका नहीं आपका सुनना है. ये तो ऐसे तो मेरे हाथ से क्लाइंट चला जाएगा कि ये तो सुन नहीं रही है अपना कुछ, तो ऐसे तो वही क्लाइंट. मतलब ये जो ट्रिकी पार्ट है कि आपको उनको कन्विंस करना है कि सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ. यहाँ पे ये अच्छा लगेगा. ये पार्ट एक्चुअली बहुत लोगों को मतलब नहीं जमता है कि कैसे Correct. करना है, क्या करना Correct. है. तो उस पे आप थोड़े अपने टिप्स आप Yeah, शेयर कर सकते हो कि sure. आप कैसे करते हो ये चीज. यस, तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, मैं उनका पूरा सुन लेती हूँ. हाँ. ओके, आई अग्री वॉट एवर यू आर सेइंग, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डोंट हैव टू हर्ट माई क्लाइंट्स. Exactly. So for them, what I do is I work on their suggestions. I turn it into 3D, and there is where I add my touch to it. Okay. So I give it a touch in such a way कि उनका इम्पार्ट मतलब उनके जो भी सजेशंस Inputs है है, yes. और मेरे जो इनपुट्स है वो एक कंबाइन होके एक रिजल्ट कुछ तैयार नया है. निकले. सो इवन दे विल बी हैप्पी कि चलो बाबा, जो हमने बताया था कि हमको इधर ये ऐसा सोफा चाहिए, एल टाइप ही चाहिए, तो उन्होंने उनको एक लुक दिया है. Yes. और उसके साथ अगर मैं बोल रही हूँ उनको कि मुझे एल टाइप के साथ एक स्विंग चेयर देनी है, तो वो भी एक इम्पार्ट किया है और मैंने उनको एक इनकलकेट करके एक अलग डिजाइन तैयार करके दी है. सो एट द एंड ऑफ द डे इवन दे आर हैप्पी, एंड एट द And सेम you टाइम are also इवन आई एम happy. सेटिस्फाइड कि वॉट एवर आई एम वर्किंग ऑन इज लुकिंग गुड. यस. तो आपने अभी जैसे कहा, मतलब हमने अभी क्लाइंट्स के बारे में डिस्कस किया, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपका सबसे ट्रिकी क्लाइंट कौन था अब तक की? मतलब आपको वहाँ पे बहुत सारे ये फेस करने पड़े कि अब इनको कैसे समझाओ या ऐसा Actually, कोई every situation? client tells a very new story. Obviously. Every client is different in themselves, and everywhere not a single client is easy to handle. Okay. Because everyone have their own thinking. Yes. Of course, so there are times where I wanted to suggest a time, and the other client had some different idea in them. Imagination. तो मैं अगर बोल रही हूँ कि इधर ग्रे अच्छा लगेगा, पर उनके दिमाग में है कि नहीं, इधर कॉफी कलर ही अच्छा लगेगा, इधर बेज कलर ही अच्छा लगेगा. Okay. सो कभी कभी सुनना पड़ता है, बट हम उसको वही ट्राई करते हैं कि जो भी हम दे रहे हैं वो भी टर्न आउट अच्छा ही हो. तो इफ दे आर टेलिंग कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, सो आई विल ट्राई टू सर्च द बेस्टेस्ट ऑफ दैट पार्ट सो दैट इट विल लुक गुड. ओके, मतलब उनको भी बुरा हाँ, नहीं उनको लगना भी चाहिए, बुरा- and आपका क्रिएटिविटी भी खराब नहीं होना चाहिए, बिकॉज एट द एंड इट विल टर्न ऑन माई पोर्टफोलियो, राइट? सो इट Okay, इज लाइक yes. माई पोर्टफोलियो, आई एम बिल्डिंग इट, सो दैट विल लाइक इंक्लूड इन माई पूरा जर्नी में आ Yes, जाएगा. yes, सो yes, बिकॉज yes. वी हैव टू शो इट टू सम अदर क्लाइंट्स, सो दे विल बी लाइक ये कैसा कलर कॉम्बिनेशन यूज किया. Exactly. सो वी हैव टू बी केयरफुल इन दैट एस्पेक्ट्स एज वेल. ओके. सो अभी तक हमने जो बात की, तो क्या मतलब मुझे ये बात आपसे पूछनी है कि आपका एंड गोल क्या है? मतलब आपने अभी ये 3 साल का कोर्स कर लिया, नाउ यू आर वर्किंग विद योर क्लाइंट्स आल्सो, तो कहाँ पे मतलब आप अपने आप को देख रहे हो कि आपको कहाँ तक जाना है, आपको क्या करना है? व्हाट इज योर गोल? So now, right now, I am doing in residential, but Okay. my very much plan is to go for commercial and industrial as well. So व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज? Sure. मतलब तो अभी रेसिडेंशियल हमारे कोर्स में भी 3 years का 3 different types है, रेसिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल. ओके. सो रेसिडेंशियल इज बेसिकली एवरीवन नो कि जैसे अपने घर रहते का, हैं, हाँ. बी इट रो हाउस, सॉरी, अ बंगलो, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK, 4 BHK और रो हाउस. सो दिस ऑल थिंग्स कम्स अंडर रेसिडेंशियल. राइट. और कमर्शियल में जैसे MNCs होते हैं आजकल, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज पुणे में है या फिर Yes. बी इट एनी सिटी, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गए, छोटे से शॉप्स
से लेके बड़ा रेस्टोरेंट, Okay. एवरीथिंग कम्स अंडर कमर्शियल, Okay. बिकॉज रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल में काफी डिफरेंस है फ्रॉम लाइटिंग टू मटेरियल. जैसे अभी रेसिडेंशियल में मोर ऑफ वॉल पार्टीशन देते हैं, कमर्शियल में हम प्लाई पार्टीशन देते हैं, बिकॉज दे विल बी मूविंग आउट सम अदर डे इन yes. सर्च ऑफ अ वेरी गुड स्पेस फॉर द बिजनेस ग्रोथ. Yes. सो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस. एंड कमर्शियल में सब कुछ आ जाता है, जैसे अपने छोटे से शॉप हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गया. जैसे गोवा में जितने भी प्रोजेक्ट्स है दे आर ऑल इनटू कमर्शियल, Commercial, बिकॉज इवन वो उनके रेसिडेंशियल भी जो होते हैं वो लेट आउट करते हैं फॉर लाइक गेस्ट. Yes, yes. तो दैट इज मोर इनटू अ होटल. इवन आजकल जो होम स्टे रहते हैं वो एयरबीएनबी. Airbnb, yes. सो दिस ऑल्सो कम्स लाइक वो भी उनका Commercial इंटीरियर में. करवा लेते, सो दैट द पर्सन हु इज कमिंग दे आर मोर लाइक Pleasing प्लीजिंग उनको या लगे, choose प्लेजेंट करें लगे उनको, चूज yes. करने में. Okay, that's सो nice. दैट इज कमर्शियल. एंड इंडस्ट्रियल में फिर फैक्ट्रीज आ गए, जो आजकल गवर्नमेंट के भी बहुत सारे फैक्ट्रीज आते हैं इंटीरियर करवाने के लिए, बिकॉज एवरी स्पेस नीड्स टू बी हैपनिंग, Yes. इट नीड्स टू बी हैव इट्स ओन वाइब, सो दैट द पर्सन वर्किंग ओवर देयर should at the end of the day they should be happy कि I am working in a very good environment. थोड़ा welcoming लगे. correct. Yes. Okay, that's great. तो जैसे आपने भी मेंशन किया कि इतने सारे टाइप्स है इसमें, इतना सारा कुछ है, अलग अलग टाइप्स रहते हैं इसमें. तो मतलब मुझे ये पूछना है कि मैंने आपको जैसे अभी क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज योर गोल, तो ये छोड़ के अपार्ट फ्रॉम द इंटीरियर पार्ट और कुछ है जो आप करना चाहते हो? As I said, my family is into this line. My dad is a builder. I look up myself to being a builder Okay. because there are like ऐसा होता है ना, एक मिथ हो जाता है कि लड़कियां नहीं बहुत कर सकती. बिल्डर भी बोला था अपन कैसे, हाँ you what is your first imagine is a man standing at that Yes, position. right. But that's what I want to change. I look myself being into that position where I'm handling a big project and then turning, of course, interior comes into that part. I won't leave my field at any say. So I see myself being at that position, building a space for people and then turning it into home for them. Oh, wow, that's very nice thought actually. So संविधा, जो हमने अभी तक बात की या जो हमारा अभी तक का आपका एक्सपीरियंस था, आपकी लाइफ जर्नी हमने देखी, इन सब में 7 मेंटर का थोड़ा सा पार्ट है. तो यहाँ का जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस है कि आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस आया, आपके टीचर्स कैसे थे, ये सारी चीज़ें थी, इस पे आप कुछ और बात कर सकते हो? अच्छा, अभी जैसे मैंने ये पूरा जर्नी आपको शेयर किया, उसमें हर एक मोमेंट में हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था. जैसे वी हैड अ डिस्कशन कि क्लाइंट को कन्विंसिंग कहाँ से आता है. So actually, a ma'am used to share her stories with her client, what she had faced, how like कैसे different clients उनको आए हैं, क्या challenges उन्होंने face किया है. So that's what helps us कि that remains in our mind कि ma'am ने ऐसा challenge ऐसा tackle किया था. So we have that idea from our mentors कि उनको ऐसा आया था, उन्होंने ऐसा टैकल किया, सो कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं. Exactly. सो वो एक बैकअप था हमारे लिए बहुत चीज़ों के लिए. इवन द प्रोसेस कि क्लाइंट को कैसे तुम, क्योंकि वी आर गिविंग अ कोटेशन, वी आर गिविंग अ डिजाइन, इट इज नॉट कंपल्सरी दैट क्लाइंट विल कम बैक टू अस. ही विल बी सर्चिंग डिफरेंट इंटीरियर डिजाइनर्स इन द मार्केट, राइट? इवन वी डू दैट व्हाइल बाइंग एनीथिंग, वी सर्च एवरीवेयर एंड जो अपने को अच्छा लगा, जो अपने बजट के हिसाब से हो, वी सर्च दैट. सो आवर टीचर्स हैव ऑलवेज taught us ki how you turn that client into your pockets. Okay. So that is what they have taught us. So from the day one process to the last day, to मतलब स्टार्ट करने से पूरा क्लीनिंग के एंड जो रहता है वो उन्होंने पूरा हमको प्रोसेस बहुत अच्छे से समझाया कि किसके पीछे क्या जाना चाहिए, तुमने कब एग्रीमेंट साइन करना चाहिए क्लाइंट के साथ, तुमने कब कोटेशन में कब कैसे पार्ट से लेना चाहिए उनसे, जो मनी हो वो कितने पार्ट्स में लेना चाहिए, कितने मतलब कितना ब्रेकअप्स देना चाहिए. आपके कोर्स में कोटेशन, यस, पूरा. सो लाइक फर्नीचर से लेके पूरा, लाइक एक सोफा क्लाइंट को कितना कोट होगा, या फिर एक फॉल सीलिंग कितना उनको जाएगा, ये सब हमको स्क्वायर फीट से मतलब पूरा स्क्वायर फीट में कैसे निकालना, ये सब सिखाया गया था. सो दैट श्योरली हेल्प्ड अस एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज दैट्स व्हाट टर्न्ड माई सेल्फ टेकिंग क्लाइंट्स. तो ऑफ कोर्स पूरे प्रोसेस में टीचर्स का हाथ
मतलब बहुत ओके इम्पोर्टेंट है. सो अभी तक आप कितने क्लाइंट्स के साथ अपने वर्क किया है So there have been three to four clients. I've also done some freelancing for my teacher itself. So like providing designs for their clients, freelancing से लेके projects तक, turnkey Wow. projects though. So I've worked for 3-4. Now right now I'm still on my building process. I'm getting थोड़े clients मिल रहे हैं जो Okay. कभी कभी budget के हिसाब से नहीं बोलते हैं. So that is our a part of the journey. We right. like we get clients, someday we don't get. So एंड हाउ डू यू हैंडल दैट पार्ट कि कभी कभी मतलब बुरा हाँ, भी बुरा लगता है लग ना कि जाता है. इतना मेहनत किया इतना हाँ, effort किया, right, फिर भी right. client Of course, नहीं we मिला. have to travel a lot. Like अभी कोई client घर के पास तो मिलता नहीं है. Right. I have got clients till 22 kilometers to 25 kilometers. I've traveled to just meet one client, give a And you quotation. travel alone. Yes, I travel alone. Wow. So I've always been an independent girl. So That's I nice. like going Everyone should myself. be. Yes. So मैंने travel किया है. कई बार ऐसा होता है कि वो end result अपने को नहीं मिलता है. Right. That doesn't turn towards us. But it is a part of the journey. We should be like able to handle this as well, because one day you get a client, the another day you won't. Don't, yes. So that is a part you should build yourself quite well कि this happens. Yes, exactly. So in the end आप जो स्टूडेंट है जो अभी इंटीरियर करना चाहते हैं, एस्पायरिंग है जिनको अभी करना है, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहोगे? Sure. So interior designing is a really very beautiful field. It is a very artistic as well as a technical field where you have to use all your skills, gather your skills, and at the end, surely when you see your paperwork, your 3D work into reality, that feeling, that that motivation is way different. मतलब एक कोई 3D प्लान किया है and when you keep your 3D in one hand and on the other side you're seeing your real result, that feeling is superb. It is very very different. So of course it is a very building जो sites जो building career option है, it is a very good career option. Of course मतलब in terms of finance also and in terms of like skills. Skills also. It needs a lots of skills and it develops your brain a lot. You become like बहुत शार्प हो जाते हैं. अब किधर भी जाते हो your observations part starts a lot. Right. Wherever you go you start observing कि ये light ऐसा बिठाया, ये light. So it like it runs your brain a lot. Yes. It is a beautiful field for all the aspiring students who are thinking about interior designing. Thank you, Samita. Thank you for your time. It was lovely talking to you. Same And here. best of luck for your future Thank journey. you. And guys, that's it for today. And we'll meet for another podcast another day. Thank you.